Assalamualaikum. I'm Dr. Samina Buddha, working as senior registrar in PGES. As you all know, all the participants, we will know that Sir Mudassar has taken the initiative to start a series of modules, a series of lecture for a better understanding of the ventilation and different strategies and different diseases. So, in the previous lectures, we have discussed the primary ventilatory settings, the ABG interpretations, the monitoring of a ventilated patient, and now my task, as you all know, that is to put a patient on ventilator, uh, revise his monitoring settings, and then ultimately take the patient to the level of weaning off and the further parameters associated with all this process. So we are going to discuss it, and it is requested to all the participants to be as interactive as possible, because as clearly mentioned, it's written in the syllabus that this module would be an interactive one. So please try to participate as much as you can. So let's start our presentation. This is a case scenario. Let's start with it. This is a commonly encountered scenario on a daily basis. A newborn delivered to para 4 mother through a cesarean section at 42 weeks of gestation. He cried immediately after birth, but he developed respiratory distress soon after the birth. Examination revealed meconium staining over nails and cord, along with signs of severe respiratory distress. Respiratory rate revealed 79 breaths per minute. Heart rate was of 168 beats per minute. He is afebrile and he had weight of 3.2 kg. Respiratory system examination revealed bilateral normal best sounds with signs of severe respiratory distress in the form of subcostal, intercostal recessions and suprasternal recessions as well. So this is a typical scenario of a meconium aspiration syndrome, the baby who had aspirated it. So what are you going to do for this baby? डॉक्टर वकार, ये कॉमन हमारा सिनेरियो है, नर्सरी के अंदर हम डेली बेसिस पे ये पेशेंट्स देख रहे होते हैं, क्या करेंगे इसके लिए आप? इनिशियल मैनेजमेंट क्या है आपकी? जी, उसकी ऑक्सीजन अटैच करेंगे, डिस्ट्रेस में है, बुकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम विद आरडीएस पेशेंट है, तो उसकी एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे प्रोफिलैक्टिक, और बाकी उसकी सैम्पलिंग वगैरह बेसलाइन करवा के वो सेंड करेंगे और उसके मुताबिक उसको आगे मैनेज करेंगे। ओके, जो रूटीन हमारी नर्सरी की मैनेजमेंट है बिल्कुल आपने ठीक कहा, वार्मर में डालेंगे, प्रोकॉक करेंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टार्ट करवाएंगे नेजल प्रोंग से जो नेजल कैनुला है, और इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड रखेंगे, फ्लूइड्स देंगे और वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, और ऑनगोइंग नर्सिंग केयर जो है उस पर हम जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब आपने नेक्स्ट करिएगा, यही सब चीजें आपने कर ली हैं जो एक रूटीन मैनेजमेंट है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की। उसके बाद दिखाइएगा डॉक्टर, नेक्स्ट स्लाइड। मीनवाइल you have received the workup in which CBC was unremarkable, CRP was negative, ABG showed pH of 7.37, PaO2 of 87 millimeter of mercury, PaCO2 50 and bicarb 21. डॉक्टर तैयबा मुझे इनकी इंटरप्रिटेशन बता दें, what does this denote? Is ABG stored? जी, thank you, madam. Madam, first of all, the step one of for prediction of ABCs is that we will look for the pH, that is 7.37. It means the overall pH is within normal range. The second is we sometimes it may be so that आपका मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी कुछ ना कुछ कंसर्ट कर रहे हैं आपस में, और पीएच ओवरऑल नॉर्मल है। पीएच के बाद भी अगर पीएच नॉर्मल है तब भी हम अदर पैरामीटर्स को PaCO2, पार्शियल प्रेशर CO2 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये परमिसिबल कार्डियक रेंज में आ रहा है। एंड बाइकार्ब इज 21, हाई रेंज 20 to 8 तक हो सकती है, तो लो नॉर्मल रेंज में है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन इज 87, our target should be more than 60 millimeter of mercury, so patient is doing fine, hypoxia नहीं है, hypercarbia है लेकिन permissible range। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो सारी की सारी रेंजेस जो हैं आपके एबीजीज की, दैट्स विद इन द नॉर्मल रेंज। करना क्या है इसके लिए, आप क्या करना है? Should we continue with the oxygen inhalation through the nasal prongs, or
we go for something else? Madam, we would look for the along with the ABGs, we will see the clinical condition of the patient, and our target should be that the respiratory patient should not be in the severe respiratory distress fatigue. अगर क्लिनिकली पेशेंट पहले से इम्प्रूव्ड है, उसके साइंस ऑफ डिस्ट्रेस इम्प्रूव हैं, तो we would simply continue with the same settings of oxygen inhalation. But as there is hypercarbia, although it is in permissible range, we would repeat this ABGs after 4 to 6 hours. थैंक यू बिल्कुल ठीक है. एज डॉक्टर तैयबा सेड कि हम कंटिन्यू रखेंगे. डॉक्टर वकार नेक्स्ट करिएगा. थ्री आवर्स के बाद एबीजीज 2 आवर्स के बाद है आपके पास. 3 आवर्स के बाद आपके पास चेस्ट एक्सरे आ गया है. जी डॉक्टर वकार, क्या है चेस्ट एक्सरे में, क्या नजर आ रहा है आपको? मैम इसमें ग्रेड 2 का आरडीएस लग रहा है क्योंकि रेटिकुलोनोडुलर पैच इसमें बन रहे हैं. ठीक है. और पैचेस आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. फ्लफी ओपेसिफिकेशन आ रही है जो कि टिपिकल है आपके मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का. दैट्स वाइड स्प्रेड. यू आर नॉट गेटिंग एनी साइंस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन. एयर लीक्स नहीं है, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है, और आपकी लंग के अंदर ओपेसिटीज आ रही हैं. तो बेसिकली आरडीएस केमिकल न्यूमोनाइटिस वाली जो चीजें हैं वो प्रीडोमिनेट कर रही हैं एक्सरे के अंदर. अब ये है कि उसकी जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए इनिशियली 4 या 5 6 तक चली गई है. डिस्ट्रेस उसका वर्स हो रहा है. इन एबीजीज इन एक्सरे के ऊपर नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या होगी आपकी? क्या करना है डॉक्टर वकार आपने? चीजें हाथ से नहीं निकली, लेकिन ये है कि वर्स होना शुरू हो गई हैं. अब क्या करेंगे आप? मैम इसमें पहले ऑप्शन हम सीपैप का रख सकते हैं. डेफिनेटली. सीपैप क्यों अवेल किया आपने? नॉर्मल तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि मेकोनियम एस्पिरेशन के अंदर सीपैप इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, समवट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑल दिस नॉट द केस, लेकिन ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग यही है. तो क्यों आपने ऑप्ट किया सीपैप पे जाना? मैम उसमें एल्वुलाई कोलैप्स और उसे वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ रही है. एग्जॉस्ट हो सकता है बच्चा, उसको ज़रा सपोर्ट करने के लिए इनिशियली हम कर सकते हैं. अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर नहीं कर रखेंगे. इनिशियली हम दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं सीपैप से. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. और दूसरी बात हमारी इंडिकेशन मेन क्या बनी कि पेशेंट जो है उसके अंदर हाइपरइन्फ्लेशन नहीं आ रही. पेशेंट के अंदर कोई बात नहीं है. पेशेंट के अंदर गैस ट्रैपिंग वाला एलिमेंट नहीं है, बल्कि आपके अंदर पैचेस आ रहे हैं, कंसोलिडेशन आ रही है, और कुछ जो चीजें हैं वो एपिलेक्टिसिस की तरफ इस एक्सरे के अंदर जाना शुरू हुई हैं. अभी स्टार्ट एपिलेक्टिसिस का. तो इस बेस पे आप इसको सीपैप पे डाल सकते हो. आप इसका जो एंड एक्सपिरेटरी जो वॉल्यूम है आप उसको बढ़ा सकते हो ताकि जो आपके एरेशन है, जो ऑक्सीजनेशन है, उस बच्चे की बेहतर हो सके. तो सीपैप इज अ वाइज ऑप्शन आपके पास, जो बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट करिए डॉक्टर साहब. कितना जा सकता है सीपैप? 5 to 8, 10 तक जा सकते हैं. जी 4 to 10 तक जा सकते हैं. आसानी से जा सकते हैं. ठीक है. अगर आपके पास जो है वो ट्रैपिंग के एलिमेंट नहीं आ रहे, हाइपरकार्बिया का एलिमेंट नहीं आ रहा, तो आप इसका जो पीप है वो 5 to 10 तक भी दे सकते हैं. तो ये भी एक ऑप्शन है. नेक्स्ट करिएगा. अच्छा, आफ्टर 4 hours of respiratory distress started worsening. ये बच्चा अब आपके 2 आवर्स हुए थे, फिर 4 आवर्स तक, तकरीबन 6 आवर्स. उसके बाद जो है वो आपका बच्चा जो है वो वर्सन होना शुरू हो गया है. Distress has started worsening, work of breathing has started increase, and ABGs were repeated, which showed pH of 7.12, PaO2 of 41, and PaC2 of 75, and bicarb of 31. डॉक्टर सायरा इनकी इंटरप्रिटेशन बता दें, क्या है इन ABGs में? सायरा. अच्छा, डॉक्टर वकार आप बताएं. मैम इसकी पीएच क्या कम नजर है. आ रहा है? इसकी पीएच कम है, एसिडीमिया हो गया. उसके बाद हमने 2 कंपोनेंट देखते हैं, CO2 या बाइकार्ब. इसमें CO2 ज्यादा लग रहा है, 45 से 20 अबव है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. और फिर तीसरा हम इसमें कंपनसेशन देखनी है. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये एक्यूट है, तो इसमें 1 शायद इंक्रीज होना चाहिए एवरी 10 के लिए. तो
एवरी 10 होना चाहिए, बाद बिल्कुल होना ठीक है। चाहिए। तो 28, 29, 30 तकरीबन कंपनसेट कर रहा है। 31 है, 1 पॉइंट ज्यादा है, लेकिन तकरीबन कंपनसेट कर रहा है। तो ये रेस्पिरेटरी ठीक है, एसिडोसिस, रेंज में है, ठीक है ठीक। तो आपकी ये एडिक्वेट कंपनसेशन है, दिस इज सिंपल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी अक्यूट एसिडोसिस विद विद और क्या चीज आ रही है इसमें, PO2 देखिए उसकी, विद मेरे साथ हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया भी है। तो ये क्या बन गया, टाइप 2 रेस्पिरेटरी टाइप 2 फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर हाइपरकार्डिया और जी, हाइपोक्सीमिया। हाइपरकार्डिया विद हाइपोक्सिया, तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। क्या करना है इसके लिए, क्या करेंगे डॉक्टर तैयबा? Type 2 respiratory failure is an indication for intubation and invasive mechanical ventilation, and similarly, it is contraindication to further continue the CPAP ventilation. So we will intubate this child in ideal aseptic environment, and we'll put on mechanical ventilation. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेंटिलेशन हम शुरू कर देंगे। आगे करिएगा डॉक्टर वकार। नेक्स्ट, ये अब उसका एक्सरे है, द मोस्ट रीसेंट वन। इसमें क्या है डॉक्टर वकार, क्या नजर आ रहा है आपको? मैम इसमें वर्सन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, लंग कोलैप्स, लंग कोलैप्स हो गया एटिलेक्टिस वर्स हो गया जी, जी। लंग कोलैप्स हो गया, आपको कोई एरेशन नजर नहीं आ रही, ठीक है, एयर आपको कोई खास नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपका जो पेशेंट है वो लंग कोलैप्स की तरफ चला गया है, ठीक है जी। तो बेसिकली दिस इज एटिलेक्टिक लंग। नेक्स्ट करिएगा, इंटुबेशन करनी है। क्या स्टेप्स है इंटुबेशन के डॉक्टर वकार? आपने तो अब तक बहुत सारी इंटुबेशन परफॉर्म कर ली होंगी, बस सोचा कि इंटुबेशन करनी है तो हमने इंटुबेशन कर दी, ग्लव्स पहन के, ETT मैम पास कर दी। जी एसेप्टिक मेयर्स देंगे, उसमें हमारे पास ट्रे अरेंज होनी चाहिए, पूरी इंक्यूबेशन ट्रे, जिसमें लेरेंजियोस्कोप है, दूसरी साइड के ब्लेड है, और एम्बो बैग है, ETT साइज है, स्टिकिंग होनी चाहिए, और सेक्शन मशीन साथ होनी चाहिए इक्विपमेंट इक्विपमेंट ठीक है, इक्विपमेंट आपने तैयार कर दिए, ठीक है। जी। दिस इज अ पार्ट ऑफ रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन। जो इमरजेंसी इंटुबेशन है ना, जो अक्सर औकात हमारे नर्सिंग के अंदर परफॉर्म हो रही होती है, दैट्स फॉर 3 रीजंस। या तो पेशेंट इज इन एपनिया, या अनकॉन्शियस है, या एसिस्टली है। इन 3 कंडीशंस के अंदर आपको रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन की प्रिपरेशन के लिए या प्री रिक्विजिट्स पूरे करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो जस्टिफाइड कि आप जल्दी से उसको इंटुबेट कर दें। लेकिन जैसे कि प्लान्ड इंटुबेशन होती है, जैसे कि हम इस बच्चे के अंदर कर रहे हैं, हमने उसका अच्छा खासा उसका जो है डाइसेक्शन की है कि अब इसको इंटुबेशन की जरूरत है, हमारे पास टाइम है। तो व्हाट इज रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन, क्या होती है RSI, कैसे करनी है? ये इमरजेंसी नहीं है, ये प्लान्ड इंटुबेशन है। तो कैसे करनी है प्लान्ड इंटुबेशन डॉक्टर तैयबा? मैडम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ETT जो है ना वो अप्रोप्रिएट साइज की जो है हम लेंगे, 3.2 kg वेट है, 3.2 kg वेट है, कितना क्या साइज होगा ETT का? 3.5 वाली हम लेंगे, ठीक है, 3.5 3.54 तक जा सकते हैं, क्योंकि हम एयर लीक्स को भी प्रिवेंट करना चाह रहे हैं और बच्चा भी हमारा जो है वो पोस्ट डेटेड सॉर्ट ऑफ है, तो हम इवन 4 तक भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3.54 एडिक्वेट है। चले, ETT साइज आपने सेलेक्ट कर लिया। देन हमें एम्बू बैग अलॉन्ग विद मास्क, और हमें स्टेरिलाइज्ड लरिंगोस्कोप चाहिए, एंड द ब्लेड ऑफ लरिंगोस्कोप मस्ट बी सोक्ड इन लिग्नोकेन सॉल्यूशन। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये है कि आप उसको सोक करें, लेकिन ज्यादा जो रिलायबल चीज है वो ये है कि आप उसके जो एयर रे है उसको टॉपिकल लिग्नोकेन अप्लाई कर दें। रीजन बीइंग, पेन कम होगी, और जब आप इंटुबेट करेंगे तो आपका रेज्ड ICP कम से कम चांसेस है कि पेशेंट का ICP रेज होगा। जब ICP रेज होता है तो वेंटिलेशन या इंटुबेशन जो है उसके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप पेशेंट को जितना हो सके रिलैक्स रखने की कोशिश करें, एयर के ऊपर टॉपिकल लिग्नोकेन अप्लाई करें। और व्हाट इज द रोल ऑफ एट्रोपिन, कुछ है एट्रोपिन का रोल देते हैं? एक्चुअली जब हम इंटुबेट कर रहे होते हैं तो उसके रिफ्लक्स में जो ब्रेडिकार्डिया आता है, उसको प्रिवेंट करने में जो है वो कहा जाता है कि इसका रोल है।
यस, दो फायदे। एक तो ये कि जो आपका ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, उसको भी समहाउ ये प्रिवेंट करेगा। और दूसरा जो आपकी सिक्रीशंस आने वाली हैं, जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपने इंटुबेशन करते हुए एयरवे को डैमेज करना है, सिक्रीशंस आनी है, तो उनको भी ये कम करेगा। ठीक है। और अगर पेशेंट बहुत इरिटेंट है, बहुत इरिटेटिंग है, और आपको लगता है कि ये बार बार अपनी ईटीटी रिमूव करेगा, तो आप मसल रिलैक्सेंट्स या इन्फ्यूजन्स जो है बेंजोडाइजेपिन्स की या सेडेटिव्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन अगर आपका बच्चा पीसीसीएनएस पैथोलॉजी की वजह से है और पहले ही थोड़ा सा ड्राउजी है, कॉन्शियस लेवल पहले ही कम है, तो उसके अंदर देने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो आपको लगे कि वो फाइट करेगा ईटीटी के साथ, क्योंकि जब वो फाइट करेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो आपकी अनसक्सेसफुल वेंटिलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए समटाइम्स आपको मसल रिलैक्सेंस पे भी जाना पड़ता है और इन्फ्यूजन, सेडेटिव इन्फ्यूजन पे भी जाना पड़ता है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ आरएसआई, रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन। सिर्फ 3 कंडीशन है जिसके अंदर आप इसको फॉलो ना करें तो ठीक है, जायज है। लेकिन अगर आप प्लान्ड इंटुबेशन कर रहे हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। ईटीटी साइज हमने डिस्कस कर लिया। What are the goals of ventilation as per meconium aspiration syndrome ventilation is concerned? इसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं। और एक बात जैसे सर मुदस्सिर से कल डिस्कस हो रही थी कि इस जो हमारी लेक्चर्स हैं, इनको प्लान करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि हमारी ग्रिप आ जाएगी डिफरेंट डिजीजेस की वेंटिलेशन मैनेजमेंट के ऊपर। हम हर डिजीज को समहाउ एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं कि एक ही हमारी जो बेसलाइन वेंटिलेटरी सेटिंग्स है उनको अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन हर डिजीज की वेंटिलेटरी स्ट्रेटजीज डिफरेंट है। तो जहां तक मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की बात है, तो पीएच गोल जो हमारा है वो है 7.30 टू 7.40। जो पहले कॉन्सेप्ट था कि अल्कलाइन साइड पे आपने रखना है वेंटिलेटेड पेशेंट को, खास तौर पे एमईएस वाले पेशेंट को, वो थोड़ा सा जो है उसके अंदर रिवर्ट आ रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। रीजन बीइंग सेंसरी न्यूरल हीलिंग लॉस। तो अगर आप ज्यादा अल्कलाइन साइड पे जाते हो, लेट्स से आप कंटिन्यूअसली जो है 7.4 7.55 की रेंज पे रहते हो, तो हम खुश तो होंगे कि अल्कलाइन साइड पे है, लेकिन इन द लॉन्ग रन द चांसेस ऑफ पेशेंट फॉर गेटिंग सेंसरी हेयरिंग लॉस आर मोर। तो हमें वो नहीं चाहिए, हम इसी रेंज में पीएच में खुश हैं। PO2 60 to 100 एक्सेप्टेबल है। CO2 जो है वो 40 to 60 तक हमारी वही परमिसिबल हाइपरकार्डिया वाली हमने बहुत दफा बात कर दी है, दोबारा नहीं करनी। SpO2 94 to 98। क्या मुझे कोई बता सकता है कि नॉर्मल जो टारगेट SpO2 है दैट्स बिटवीन 91 to 94, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसको बड़े क्लियरली। व्हाई SpO2 इज बिट हाई एज पर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इज कंसर्न? क्यों हम हाई देना चाह रहे हैं इसको? सही बात क्या डॉक्टर बकार जी? अगर नहीं तो हम डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी बताइएगा। मैम इसमें ये है कि सर्फेक्टेंट पहले ही डेफिशिएंट है या एयरवेज पहले ही वो कोलैप्स है, इसलिए इसमें डॉक्टर सबीना देखिए डॉक्टर साहब जी सर जी I would like to add something. Basically, in the goals that we have mentioned, the primary goal is we have to correct oxygen, keep oxygen high, number one, and number two, we have to keep saturations in a high range. So these are basically one thing: oxygenation, a good oxygenation, number one. Number two, do not want to allow hypocarbia. So the benefit of hypoxia, benefit of giving high oxygen is it's a form of vasodilator. So the pulmonary vascular resistance will drop, and the blood flow to the lungs will improve, and the shifting will not take place. This is number one benefit. The number two is PCO2. Apart from sensory neural hearing loss, there is another disadvantage. Previously, we used to do settings of low PCO2 permits hypocarbia as a strategy for ventilation of meconium aspiration. But now the trend is changing. Why the trend is changing? They say if you bring the PCO2 lower, it will lead to CNS vasoconstriction. So this CNS vasoconstriction will lead to compromise of cerebral perfusion and brain injury. So hypoxic
or ischemic injury, basically ischemic injury due to reduced perfusion, that is the major factor that will have a problem in the long term. So these are the two issues. We are keeping high oxygen to promote dilatation of the vessels, along with other supportive cares like with even other vasodilators, nitric oxide, that is not available here, or the other vasodilators of what we use here. You see this, there are drugs, sildenafil or prostacyclin, sildenafil. Even milrinone. These are the drugs which are being used to dilate pulmonary vasculature. But we can get, during ventilation, we can get advantage of oxygen. That if we give more oxygen and high oxygen, that also is a sort of pulmonary vasodilator. Thank you. Definitely. Thank you, sir. बिल्कुल सर, यही रीजन है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो PPHN है, persistent pulmonary hypertension of newborn, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। और हमें सबको पता है कि हाइपोक्सिया जो है वो पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्टर है, तो हम पल्मोनरी वेजल्स को डायलेट करके तो PPHN को अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट करिए डॉक्टर वकार। ठीक है, अच्छा, अभी हमने जिक्र किया था कि जो हमारा एक्सरे था उसके अंदर मेनली एटिलेक्टिक चेंजेस थे, कोई हाइपर इन्फ्लेशन, कोई गैस ट्रैपिंग, कोई फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम नहीं थी। जो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की सेटिंग्स है ना, वो डिपेंड करती हैं दो पैथोफिजियोलॉजीज के ऊपर, वेदर द प्रीडोमिनेंट पैथोफिजियोलॉजी इज एटिलेक्टिसिस और प्रीडोमिनेंट पैथोफिजियोलॉजी इज गैस ट्रैपिंग और एयर लीक्स और हाइपर इन्फ्लेशन। अगर आपके पास मार्क्ड ग्लोबल या रीजनल एटिलेक्टिसिस आ रहा है तो इसके अंदर आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज करनी है। आपने पीप बढ़ानी है ताकि आपका एंड एक्सपिरेटरी लंग वॉल्यूम ज्यादा हो सके और आपके जो बच गए हैं एल्विलाई, जो फंक्शनल एल्विलाई हैं, उनसे आप ज्यादा काम ले सकें। दूसरी बात यह है कि आप पिप को बढ़ाएंगे ताकि आपके एटिलेक्टिक लंग यूनिट्स जो हैं उनको आप रिक्रूट कर सकें, उनसे भी आप काम ले सकें। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पीप, इंक्रीजिंग पिप, और दूसरी बात यह है कि इंस्पिरेटरी टाइम को आप बढ़ाएंगे ताकि आपकी रिक्रूटिंग जो इफेक्ट है पिप का वो भी बढ़ सके और आपका टाइडल वॉल्यूम भी अच्छा हो जाए। तो ये तीन मेन स्ट्रैटेजीज हैं एज पर कन्वेंशनल वेंटिलेशन इज कंसर्न। पिप बढ़ाएंगे और इंस्पिरेटरी टाइम बढ़ाएंगे। अगर आपका प्रीडोमिनेंट पैथोफिजियोलॉजी इज एटिलेक्टिसिस, साथ हम क्या करेंगे, अगर इन मोडालिटी से बात नहीं बनती, लेट्स से कुछ पैरामीटर्स हैं, मैक्सिमम जो पीप है आपकी नॉर्मली 10 तक, अगर आपको 10 से ऊपर जाना पड़ रहा है तो फिर अब आप कन्वेंशनल वेंटिलेशन को कंटिन्यू फर्दर नहीं कर सकते, फिर आपको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन या जेट वेंटिलेशन पे जाना पड़ेगा, अलॉन्ग विद अदर सपोर्टिव केयर लाइक सर्फेक्टेंट और लंग लिवाज। और अगर आपकी पिप जो है वो 30 से ज्यादा जाना पड़ रहा है, आपको ऑप्ट करना पड़ रहा है, तो भी आपको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन पे जाना पड़ेगा। कन्वेंशनल वेंटिलेशन वुड बी ऑफ नो हेल्प। और इंस्पिरेटरी टाइम को भी हम 0.5 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आप आधा साइकिल इंस्पिरेटरी टाइम, आधा साइकिल जो है एक्सपिरेटरी टाइम जो 1 सेकेंड का है, अगर आप उसको कर लें तो ये आपकी अपर लिमिट्स आ रही है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जहां तक बात है एटिलेक्टिक लंग को वेंटिलेट करने की। नेक्स्ट करिए डॉक्टर प्रकाश। Now coming to the other pathophysiology which is basically gas trapping, और ये चूंकि ज्यादा कॉमन है और उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने अपनी इस सिनेरियो के अंदर इसको फोकस नहीं किया। मैंने एटिलेक्टिसिस को ज्यादा फोकस किया कि उसके बारे में हम थोड़ा सा वीक हैं। ये हम डेली बेसिस पे गैस ट्रैपिंग, हाइपर इन्फ्लेटेड एयर लीक्स डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं और हम सबको पता है कि इसको हमने कैसे मैनेज करना है। बेसिकली उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर आप पीप कम करेंगे। एक बात हमें याद रखनी है कि एटिलेक्टिसिस की वजह से वर्सनिंग हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इंस्पिरेटरी टाइम को हम कम करेंगे और एक्सपिरेटरी टाइम को हम बढ़ा देंगे। पीप कम करेंगे और जो एक्सपिरेटरी टाइम है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। और हाई फ्रीक्वेंसी और आपके पास जेट वेंटिलेशन के ऑप्शन तो हैं ही हैं एडवांस वेंटिलेशन के लिए। नेक्स्ट करिए डॉक्टर। Rashmina, can we go back to the slide? जी सर। डॉक्टर साहब पीछे करिएगा डॉक्टर का। You said if there is gas trapping, the strategy is to decrease inspiratory time and increase expiratory time. This is one of the gas trapping along with hypercarbia. Gas trapping along with hypercarbia. Our goal is to decrease not simple gas time trapping.
जी सर, and increase expiratory time. But I will disagree here because जी सर, how will you do जी that? सर, How will you manage? How will you decrease inspiratory time and how will you increase expiratory time? How will you manage that? You will increase. अच्छा, Uh, how will you achieve that? अच्छा सर, इसके अंदर ये है कि जो Adjustment क्या आपका करेंगे? रेस्पिरेटरी रेट है ना, दैट इज नॉट मेंट टू बी, जी सर, जी सर, इसके अंदर ये है कि जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है दैट सपोज टू बी नॉट गो टू बियॉन्ड 60 इवन 50। ये कहते हैं कि जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है ना एमएस के लिए, वो आप 50 या इवन 50 से भी कम रखने की कोशिश करें एट द एक्सपेंस ऑफ वॉशिंग आउट CO2। वॉल्यूम जमा नहीं करना चाहते। हमें ये भी पता है कि रेट बढ़ेगा तो आपका टाइडल वॉल्यूम और आपका मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा। जब मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम ट्रॉमा की और वेंटिलेटरी इंड्यूस्ड जो लंग इंजरी है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो हम रेट को 50 या इवन 50 से कम रखें और उसमें से फिर हम ये कर सकते हैं कि हम एक्सपिरेटरी टाइम को ज्यादा कर दें। Exactly. This is very important point. We are not actually decreasing inspiratory time. We are actually decreasing respiratory rate. Basically, we are decreasing respiratory rate, रेस्पिरेटरी रेट, and when we decrease respiratory rate, the inspiratory time will automatically increase, and we will have enough time for expiration as well. So basically we are not decreasing our inspiration, because if you decrease inspiration time in meconium aspiration, you cannot oxygenate. So though this decrease in inspiratory time is proportionate actually, proportionate to expiratory time as well. So basically total reduction of respiratory rate will increase per breath inspiratory time and per breath expiratory time. बिल्कुल बिल्कुल। Do you agree? डॉक्टर प्रकाश जी सर, डेफिनेटली यही मैकेनिज्म, बिल्कुल सर, ऐसे ही। If we encounter pulmonary hypertension, then correction of the ongoing nursing care, hypoglycemia, hypothermia, hypomagnesemia, उन सारी चीज़ों को electrolytes, fluid balances आपने करने हैं, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर को आपने बूस्ट करना है, राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन को आपने इंप्रूव करना है प्रेशर्स देके, और पल्मोनरी वेजोडाइलेटर एज सर राइटी सेड के इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बहुत पोटेंट वेजोडाइलेटर है और इट्स अ प्रेफर्ड ऑप्शन इन वेंटिलेटेड पेशेंट। तो अगर अवेलेबल हो किसी सेटिंग में तो इन पे जाना चाहिए हमें एज पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन मैनेजमेंट इज कंसर्न। नाउ कमिंग टू द वेंटिलेटरी सेटिंग्स, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि इसके अंदर जो प्रेफर्ड मोड ऑफ वेंटिलेशन है दैट्स PCSIMV। बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है कि इंटरमीडिएट मैंडेटरी है या सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन जो है इसके अंदर प्रेफर्ड ऑप्शन है, लेकिन कुछ स्टडीज हैं क्योंकि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का वेंटिलेटरी डाटा जो है वो एडल्ट के मुकाबले में ज़रा इनसफिशिएंट है। तो अगर आपका जो कुछ स्टडीज देखी हैं हमने उसके अंदर ये है कि प्रेशर कंट्रोल सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन इज सुपीरियर एज कंपेयर टू द इंटरमीडिएट मैंडेटरी अदर मोड ऑफ वेंटिलेशन। स्पीड जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसकी रेंज इट्स बिटवीन 3 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। If the highest possible PEEP to be given in a patient of meconium aspiration syndrome is 30. If there is a need to go beyond 30, then this conventional mechanical ventilation is not possible. You need to go for the high frequency ventilation. Inspiratory time up to 0.5 हम जा सकते हैं यहाँ तक। टाइडल वॉल्यूम द रेंज नॉर्मल हमें पता है कि 6 to 10 है या 4 to 10 है, लेकिन इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम इज बिटवीन 5 to 6 ml per kg। रेस्पिरेटरी रेट जैसे कि अभी सर ने डिस्कस किया है कि इट्स 50। कोशिश करनी है हमने कि हमें 50 से ऊपर ना जाना पड़े, 50 और लेस देन 50। और FiO2 it depends on the clinical condition because we are not ready to tolerate the hypoxia। हमें जो PO2 required SpO2 है that's between 94 to 98। तो हमें रेंज में अगर SpO2 मिल रही है तो हम FiO2 उसके मुताबिक जो है वो टाइट्रेट अप डाउन कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस पेशेंट की जो वेंटिलेटरी सेटिंग्स है इनिशियली चूंकि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर आ रहा था इसके अंदर और हाइपरकार्बिया और वो सारी चीजें थी, तो हमने इनिशियल जो उसका मोड सेट किया है दैट्स प्रेशर कंट्रोल सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन। पिप हमने 25 सिलेक्ट किया है। ठीक है डॉक्टर वकार, क्यों हमने पिप हाई थोड़ी सी सिलेक्ट की है? रेंज के अंदर है लेकिन बिट हाई, क्यों सिलेक्ट? रीजन क्या है, क्या करना चाहते हैं हम?
जी डॉक्टर वकार, उसकी ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव, हाइपरकार्बिया भी आ रहा था, हाइपरकार्बिया भी है। इम्प्रूव होगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था कि अगर ऑक्सीजन बेहतर करनी है तो या तो FiO2 बढ़ा दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, या आप मीन एयरवे प्रेशर को चेंज करें, उसको बढ़ाएं, जो कि डिपेंड करेगा पी पे और इंस्पिरेटरी टाइम पे, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी टाइम जो है वो हमने रखा हुआ है 0.3 सेकेंड्स, और चूंकि हाइपरकार्बिया वाला एलिमेंट भी है और आपका जो है वो रेट भी हमने 50 रखा है, तो ये मैनेजेबल है, जैसे कि सर ने अभी डिस्कस किया। तो 0.3 आपका इंस्पिरेटरी टाइम है, रेट आपका 50 है, FiO2 70 और पीप आपकी 6 और पिप आपका 25। अब आपकी दोनों चीजें कवर हो रही हैं, ऑक्सीजनेशन के पैरामीटर्स भी पूरे हो रहे हैं और आपके CO2 वॉश आउट करने के पैरामीटर्स भी पूरे हो रहे हैं। आपका एक्सपिरेटरी टाइम थोड़ा हाई साइड पे है, ठीक है। तो ये आपने ABGs की जो है वो इंटरवेंशन की है एज पर वेंटिलेशन। नेक्स्ट करिए डॉक्टर। Initial, is there any query on this initial settings? Any question? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वकार, और वालेकुम सलाम। जी मैडम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है माशाल्लाह, लेकिन इसकी पिप क्या इनिशियली हम 18 से स्टार्ट नहीं लेंगे, डायरेक्ट 25 ही सेट करेंगे? अच्छा डॉक्टर हाँ जी, अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हाई सेटिंग देने का फायदा है। फायदा इसका ये है कि आपकी ऑक्सीजन कितनी आ रही है आपकी ऑक्सीजनेशन, ठीक है। SpO2 आपकी ड्रॉप कर रही है, SpO2 इज बिटवीन 72, रिक्वायर्ड क्या है आपकी 94, और अगर आपने इसको ऐसे ही चलने दिया तो क्या होगा, आपका हाइपोक्सीमिया वर्स होगा, आपके चांसेस फॉर गेटिंग पोजीशन पर हाइपरटेंशन बढ़ जाएंगे, और आपका जो अल्टीमेट गोल है टू वीन आउट द पेशेंट फ्रॉम मेडिकेशन एज सून एज पॉसिबल, वो बिल्कुल हैम्पर हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, फर्स्ट इज हाइपोक्सीमिया, सेकंड इज हाइपरकार्डिया, आपकी PCO2 इज 75, ठीक है जी। तो 75 भी किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, हम रेट नहीं बढ़ा सकते वॉश आउट करने के लिए, तो हमने इन पैरामीटर्स पे फोकस इसलिए करना पड़ा है ताकि हमारे दोनों जो वेंटिलेशन के गोल्स हैं कि हम जो SpO2 है उसको भी नॉर्मल रेंजेस में रखें और PCO2 को भी नॉर्मल रेंजेस में रखें, जिससे हमें लॉन्ग रन में फायदा होगा। अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि हम सेटिंग रिस्क की कम रखें और पेशेंट हमारा लटक जाए। अल्टीमेटली गोल ये है कि इसको इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से एज सून एज पॉसिबल बाहर लेके आए और इसको हम जल्दी बीन ऑफ करें, पेशेंट को सेव करना है। उसके लंग्स को अगर हम ये कहेंगे लंग डैमेज हो जाएगा और वो बाद में एक्सपायर हो जाए तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना जी। तो इसलिए हमने जो सेटिंग्स हैं शुरू में थोड़ी सी हाई साइड पे रखी हैं, क्योंकि हमारे गोल्स दोनों पूरे हो रहे हैं इन सेटिंग्स से, ठीक है डॉक्टर? I would like to add, Dr. Tanveer, if you allow hypoxia, then there will be pulmonary vasoconstriction, and it will be an additional problem. So we do want to avoid this persistent pulmonary hypertension from the beginning by giving high oxygen. And since usually the patients with meconium aspiration, they are full term or sometimes post term, so we are not very much worried about oxygen injury, although this will be there, but we want to keep the oxygen on higher side as a drug for pulmonary hypertension. So Dr. Samina has very nicely concluded that PIP has dual advantage. It will decrease PCO2. It will also increase the oxygenation as well. So both benefits are achieved with this PIP. Where you have a limitation of maximum inspiratory time is 0.5 and your rate is maximum 50. Otherwise, you have to go to high frequency. Okay, sir. Thank you very much. बिल्कुल। और सर जैसे Okay, next. सर जैसे आपसे डिस्कस हुआ था कि हर डिजीज जो है सेटिंग्स डिफरेंट हैं, तो हो सकता है अगर ये RDS होता तो हम थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते, लेकिन ये MAS है और हमारे जो गोल्स हैं या जो टारगेटेड वैल्यूज हैं उसके मुताबिक हमें जो है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। That's mean our goal for RDS oxygen saturation is between 88 to 92%. जी सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। So our goal is different. We do not want to increase oxygen level in the blood. We accept even 90% saturation. It's equally good. Definitely.
अब आते हैं जो लास्ट टाइम डॉक्टर जुनैद ने लेक्चर दिया था, उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दी थी कि मॉनिटरिंग पैरामीटर्स डॉक्टर वकार क्या क्या चीजें, क्या क्या देखते रहना आपने साथ साथ पेशेंट को जब आपने वेंट पे डाला है? अलार्म देखते रहना है डेफिनेटली, बजिंग हो रही है उसको आपने एड्रेस करना है, और क्या देखना है? मॉनिटरिंग पैरामीटर्स क्या क्या है? उसमें एक वेंटिलेटर मॉनिटरिंग थी, दूसरी क्लिनिकल मॉनिटरिंग थी, और तीसरा लेबोरेटरी मॉनिटरिंग थी। एबीजीज करवाने हैं, बिल्कुल ठीक और ये तीनों पैरामीटर्स को हमने इकट्ठे लेके चलना है। जी, बिल्कुल सही है। So as for ventilatory monitoring is concerned, mod is PCSI only. PIP over PIP as we already discussed, 25/6. FiO2 is 70, rate is 50 and inspiratory time is 0.3. Next करिएगा, ये वो हैं जो हमने सेट किए हैं जो हमारे हाथ में। नेक्स्ट करिए डॉक्टर बकार। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितना हुआ इसका? 16 मैंने लिखा हुआ है, क्या ठीक है? 3.2 kg बेबी है आपका, ठीक है? टाइडल वॉल्यूम इतना ही आना चाहिए डॉक्टर बकार। हमने लोअर रेंज में रखना था इसको, तो 3.2 के हिसाब से लोएस्ट पॉसिबल जो हमारी इसके अंदर है वो 4 है ना जी? जी। 5 to 6 है या लोएस्ट 4 है। 5 से अगर आप करते हैं इसको तो ये ठीक है या नहीं? 5 के हिसाब से भी ठीक है, 16-17 होना चाहिए ठीक है। तकरीबन। और व्हाट अबाउट मिनट वेंटिलेशन? टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन मुझे बताएं कि ये क्या ठीक है और क्या इतनी होनी चाहिए थी? जी, ये 16 मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। 16 Minute ventilation, madam, basically is 2 to 400 ml per kg. The weight of our child is 3.2. ठीक है, So roughly 600 to 1200 ml total minute ventilation. तो ये within range आ रही है 800 ml. Fine. विद इन रेंज आ रही है, ठीक है। और थोड़ा हायर साइड पे नहीं है तो वॉल्यूम ट्रॉमा या वेंटिलेटर इंड्यूस इंजरी के चांसेस भी कम है। तो इन सेटिंग्स के अंदर आपके सारे जो पैरामीटर्स हैं या सारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। नेक्स्ट करिएगा डॉक्टर बकार। ठीक है जी। एज पर क्लिनिकल मॉनिटरिंग इज कंसर्न, हार्ट रेट इज 145, रेस्पिरेटरी रेट इज 70 ब्रेथ्स पर मिनट। 70 ब्रेथ्स पर मिनट हमने कितना सेट किया था? 50 किया था। 50 किया। ठीक है जी। क्लिनिकली आपके पास 70 आ रहा है, दैट गोज ऑन टू शो 20 आवर स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स, गुड साइन, ठीक है। टेम्परेचर इज 8, SpO2 is 95, well within the normal ranges, unit fluxes are good, urinary output is the normal ranges. ABG, ये ABGs देखिएगा डॉक्टर बकार, आपने मुझे बताना है। ABGs pH is 7.20, साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। एसिडीमिया PCO2 68, PCO2 is 68 जी। ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है इसमें, क्योंकि 25 बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, PCO2 ज्यादा है, ठीक है जी, ठीक है। और PO2 भी नॉर्मल है, इम्प्रूव इस सेटिंग पे इम्प्रूव की है, नॉर्मल रेंजेस में है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो सेटिंग्स हैव वर्कड और बाइकार्ब इज 25 नॉर्मल रेंज में है। इंटरप्रिटेशन है ABG की नॉर्मल रेंज में है और एडिक्वेट है या कोई मिक्स्ड एसिड बेस बैलेंस वाली बात है? नहीं, ये मिक्स्ड होगा। कितना होना चाहिए था बाइकार्ब इसके? इसमें 30 होना चाहिए था क्या बाइकार्ब। रेस्पिरेटरी डोसेज विद ऑलमोस्ट है ना 30 होना चाहिए था, तो ये लो है। तो क्या हुआ? दिस इज मिक्स्ड डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जी, ये इंटरप्रिटेशन है डॉक्टर? जी जी, यही है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करिएगा डॉक्टर। नेक्स्ट डॉक्टर जी, थैंक यू डॉक्टर बकार। नेक्स्ट करें। मैम कर दिए पे। कंडीशन ऑफ द पेशेंट रिमेन स्टैटिक। जी जी, कंडीशन ऑफ द पेशेंट रिमेन स्टैटिक फॉर 6 आवर्स। ये ABGs रिपीट होने के बाद की बात है। तो आफ्टर 6 more hours have passed और पेशेंट की कंडीशन was static, then suddenly patient had severe respiratory distress, increased work of breathing obviously, और साथ उसकी saturation has dropped to 76। क्या देखना है डॉक्टर तनवीर? What to do next? मैम इसमें सडन सैचुरेशन ड्रॉप हुई है, देन विल गो फॉर मतलब इसमें न्यूमोथोरैक्स के लिए देखेंगे। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे, लेकिन जो हमारे बिगनर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, पीजीज हैं, उनके लिए बता दें डोप का कॉन्सेप्ट दे दें। डोप बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मतलब BTT पोजीशन है या फिर उसमें कोई लो डोप में मैडम म्यू है। जी
डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन है और न्यूमोथोरैक्स है है और इक्विपमेंट इक्विपमेंट है। और इक्विपमेंट फेलियर, पीछे वेंटिलेटरी जो मतलब कोई उसमें कोई प्रेशर तो कोई इशू तो नहीं है या कोई लीकिंग तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। सो डिसलॉजमेंट आपने देखी, ईटीटी इज इन प्लेस। ऑब्स्ट्रक्शन आपने देखी, कोई सिक्रीशंस या कोई इस तरह का क्लॉग जो है वो अपेरेंटली नहीं बना हुआ। और जब आपने न्यूमोथोरैक्स किए तो आपको बल्ज भी मिल गया, लोकलाइज एयर एंट्री भी कम मिल गई आपको, ठीक है। और आपने जो है वो फिर सोच इक्विपमेंट बस फाइन, आपने न्यूमोथोरैक्स सोचा, आगे करिएगा। यू गॉट द चेस्ट एक्सरे डन एंड चेस्ट एक्सरे टर्न्ड आउट टू बी लाइक दिस। जी डॉक्टर बकार, क्या है इसमें मैम ये लेफ्ट साइडेड फाइंडिंग, पॉजिटिव फाइंडिंग बताइएगा। कौन सी साइड डॉक्टर? राइट साइड न्यूमोथोरैक्स है। राइट है ना जी, राइट साइड न्यूमोथोरैक्स है। ब्रोंकोवास्कुलर मार्क, जी जी शाबाश, राइट साइड न्यूमोथोरैक्स है। और कुछ आपको हिंट, जी कुछ हिंट आपको न्यूमोमेडिएसिनम का मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, आप इसको न्यूमोथोरैक्स ही रखेंगे, राइट साइडेड, ठीक है जी। और इसकी वजह से मेडिएस्ट्रल जो है थोड़ा पुश हुआ हुआ है और जो कोलैप्स लंग वाली चीजें हैं वो भी आ रही हैं। सो दिस इज राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स। क्या करना है राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स के लिए डॉक्टर बकार? मैम सेकंड बच्चों में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में वो लीडर हम जड़ कर गए। पहले मुझे ये बताएं दिस इज सिंपल न्यूमोथोरैक्स या टेंशन न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि इंटरवेंशन डिफरेंट होगी ना दोनों के लिए। तो कौन सा न्यूमोथोरैक्स है ये? सिंपल लग रहा है। तनवीर, दिस इज सिंपल न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स? सिंपल लग रहा है, कैसे? Hemodynamics of the patient. For this, we want to know the hemodynamics of the patient. Is the patient in hypotension or not? मैंने आपको बताया पेशेंट हैज स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट, इट स्टार्टेड एक्सरे टू से डेट है वर्सन। जी जी, मेडिकल तो शिफ्ट हुई हुई है टोटली, मेडिएस्ट्रल शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और क्लिनिकली मैंने आपको बताया है कि आपका पेशेंट जो है वर्स शुरू हो गया, आपके पेशेंट डीसैट होना शुरू हो गए, ठीक है, शॉक वाली चीजें आना शुरू हो गई हैं, जो है वो रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक जो अरेंजमेंट है या हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी वाली चीजें आना शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेटली जो है टेंशन वाली बात है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो है वो सिर्फ आप क्लिनिकली ना फैसला कर सकते हैं ना आप रेडियोलॉजिकली, आपने दोनों को कंबाइन करके फैसला करना होता है। और इंटरवेंशन इसके अंदर क्या होगी, क्लिनिकली भी बच्चा आपका डिटोरिएट कर रहा है, तो इसके अंदर क्या इंटरवेंशन होगी डॉक्टर वकार? नीडल थोरैकोटमी, इमरजेंसी नीडल थोरैकोटमी एंड अल्टीमेटली चेस्ट ट्यूब, अल्टीमेटली चेस्ट ट्यूब इंटुबेशन, ठीक है। चलें नेक्स्ट करिएगा डॉक्टर वकार। इसके बाद आपने एबीजीज रिसीव किए हैं अराउंड 4 to 6 आवर्स। एबीजीज जो थे वो पीएच 7.32, PO2 जो है वो 89 है और PCO2 बाइका 23 है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि एक ही चीज बार बार आ रही है। मीनवाइल आपके पेशेंट की सिक्रेशंस भी कूल अप हुई हैं, आपने उनकी सक्शनिंग की है, आपने प्रॉपर नर्सिंग केयर की है, आपने उसके अलार्म्स को एड्रेस किया है, आपने उसकी वाइटल मॉनिटरिंग जो शीट हमने अभी डिस्कस की है उसके ऊपर आवरली मॉनिटरिंग की है। आपका एक हाउस ऑफिसर वाज कंटिन्यूअसली टेकिंग ड्यूटी ऑफ दिस वेंटिलेटेड पेशेंट होल हार्टेडली, विजिलेंटली। उसके बाद ये 6 to 8 आवर्स ऑफ चेस्ट ट्यूब इंटुबेशन आपके एबीजीज आए हैं व्हिच आर लाइक दिस। तो तैयबा क्या है इन एबीजीज में, ठीक है या कोई इंटरवेंशन की जरूरत है? patient is doing fine, there is no hypoxemia, there is no hypercardia, within normal desired range, so we will continue with the same treatment. जी डेफिनेटली, ठीक है। तो सारी आपकी वेंटिलेटरी स्ट्रेटजीज, आपकी जो चेस्ट ट्यूब इंटुबेशन, आपका इनटेक आउटपुट, आपके मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, आपके एबीजीज की फ्रीक्वेंसी, आपकी एक्सरे रिपीट किया आपने इस टाइम पे, और दैट शोड द इन्फ्लेटेड लंग। जो आपकी मेडिएस्ट्रल शिफ्ट था वो भी बेहतर हुआ है, पेशेंट क्लिनिकली भी बेहतर हुआ है, ऑल्दो लो डोज जो है वो आइनोट्रॉप पे है, वेसोप्रेसर्स पे है, लेकिन ही इज डूइंग फाइन, ही इज मेंटेनिंग सैचुरेशन विद द नॉर्मल रेंज एंड एबीजीज भी आपके बेहतर आ गए। अब क्या करना है मैडम? एक्सरे क्या करना है? एक्सरे हम रिपीट किया, अगर वो बेहतर है, लंग इन्फ्लेट हो चुका है हो गए, तो उसके बाद हम वी विल लुक फॉर द
बबलिंग इन द चेस्ट ट्यूब, अंडर वाटर सीएलएस में बबलिंग करेंगे। चलिए वो रूटीन केयर आ गई है, वो थोड़ा सा हम वेंटिलेशन से हट जाएंगे, इसलिए हमें उसमें डिस्कस नहीं करना, तो हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। वीनिंग का सोचनी है आपने? मैम अभी फौरन से वीनिंग, अब हम इसको मजीद वेट ना कर लें, मजीद 6 आवर्स हम वेट कर लें इधर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम खुश हैं इन पैरामीटर्स पे। और मीनवाइल आपका 2.5 डे गुजर गया है इस सारे पेशेंट को मैनेज करते हुए, ठीक है, 2.5 दिन हो गए हैं, और आपने ये लेटेस्ट एबीजीज हैं, उसके बाद आपने 6 आवर्स के बाद एबीजीज करवाए हैं और वो भी नॉर्मल आ गए, बिल्कुल आपकी रेंजेस नॉर्मल है। ठीक है जी, डॉक्टर बकार आगे करिएगा, नेक्स्ट करिएगा। वीनिंग, अब आपने वीनिंग का सोचना है, कैसे वीनिंग करनी है। डॉक्टर बकार प्रीवियस स्लाइड पर जाइएगा, कैसे वीनिंग करनी है डॉक्टर तैयबा? मैडम इसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना है। नंबर 1 तो ये है कि इसमें हम चूंकि हमारी एचडी डली हुई है लैरिंक्स में, लैरेंजियल म्यूकोजा हुआ होगा, तो इसमें रिस्क है कि जब हम एचडी रिमूव करेंगे तो वो कोलैप्स हो सकती है। तो उसके लिए पेशेंट हम प्रिपेयर करेंगे, हम डेक्सा की डोज एक एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर वीनिंग हम एक डोज दे देंगे इसको। ये है कि अब हम इसकी सेटिंग ग्रेजुअली टेपर करें। डॉक्टर तैयबा फॉर बिगिनर्स एंड हाउस ऑफिसर्स क्या डोज है इसकी डेक्सा की पर एडिमा? 0.6 mg per kg per day, 0.6 mg per kg स्टैंड। अच्छा, थोड़ी लोअर भी जा सकते हैं, 0.25 तक भी जा सकते हैं, टाइट्रेट अप कर सकते हैं, लेकिन जो वो है वो 0.25 mg पर kg है। और आपने स्टैट डोज दी, उसके बाद आप इसको TDS पर 1 डे जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। और जब आप वीनिंग सोच रहे हो ना, एंटिसिपेट कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 6 to 12 या 24 आवर्स पहले दे देना चाहिए, ताकि उसका जो एयरवे एडिमा है वो कम हो जाए, सेटल हो जाए, और आपकी एक्सटुबेशन जो है सक्सेसफुल हो। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। फिर और क्या करना है? सर मैम हम अब इसके जो पैरामीटर्स हैं, FiO2 हमने 50% दी हुई है, रेस्पिरेटरी रेट हम 50 दे रहे हैं, पिप हम मैक्सिमम दे रहे हैं 25 या 30, 25 हमने सेट की, और इनको अब हम ग्रेजुअली टेपर करेंगे। इनको हम ग्रेजुअली टेपर डाउन करेंगे, ठीक हो गया, बिल्कुल। ये हम बात कर रहे हैं प्रेशर कंट्रोल सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन की। व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ दिस वीनिंग ऑफ फ्रॉम द पेशेंट फ्रॉम द बेड? और कौन से मोड्स हैं? तो मैडम सीपैप मोड कौन सा है? और सीपैप भी है, ओके। और कौन सा है? जी सायरा, वीनिंग ऑफ मोड कौन से हैं वेंटिलेटर के? मैम प्रेशर कंट्रोल, ने जिक्र किया, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, ये इटसेल्फ वीनिंग मोड है। जी डॉक्टर बकार, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो है ना मैम बाईपैप हो सकता है, लेकिन वो बड़ों में शायद सीपैप चले, ठीक है, बाईपैप चले, ठीक है। अच्छा जी, तो जो हमारे वीनिंग वेंटिलेटरी मोड है ना, एक तो ये आपका प्रेशर कंट्रोल सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेटर है, और जब ये शुरू में आया था ना 1970s 80s के अंदर, तो तब इट वाज यूज्ड एज वीनिंग मोड। ये जो पेशेंट को वो वीन ऑफ कर रहे होते थे वेंट से, तब ये यूज किया करते थे, और फिर जब दे केम टू नो इट्स बेनिफिट, तो उन्होंने इसको मेन वेंटिलेटरी मोड जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। अब जो रीसेंट स्टडीज आ रही हैं वो ये कहती हैं कि इसके ऊपर ठीक है कि आपका पेशेंट मैनेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी गुड वीनिंग मोड, इतना अच्छा नहीं है। इसके जो स्टडीज हुए हैं, जो कंपैरिजन हुए हैं विद प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, खासतौर पे प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे बहुत फोकस किया गया है, जितनी भी स्टडीज मैंने देखी हैं। तो PSV इज अ वेरी गुड वीनिंग मोड ऑफ वेंटिलेशन, वेरी गुड। स्टडीज भी हैं, और उसकी एफिकेसी और उसका जो रीइंटुबेशन या एक्सटुबेशन फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो PSV इज अ थिंग, आपके पास एक वैलिड ऑप्शन है, CPAP एक ऑप्शन है, ये SIM एक ऑप्शन है। बट ये स्पॉन्टेनियस ब्रेथ ट्रायल या टेस्ट, तैयबा SBT क्या है? स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल या टेस्ट कैसे करते हैं, कब करना है, क्या इंडिकेशंस हैं? ट्रायल देना चाह रहे हैं ना आप उसको वीन करना चाह रहे हैं, या एज मैटर ऑफ फैक्ट आप उसको एक्सटुबेट करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो SBT क्या है, कैसे करना? चलिए,
एक चीज होती है कोई मसला नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज होती है टी पीस, जो आपका एसबीटी है ना, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल, ये आप दो तरीके से अचीव करते हो। एक तो ये कि आप मैकेनिकल वेंटिलेशन को बिल्कुल बंद करते हैं, ईटीटी इन प्लेस रखते हैं और टी पीस को अटैच करते हैं विद ईटीटी। टी पी से क्या है कि आपकी ऑक्सीजन उसको डिलीवर हो रही है, बाकी सारी की सारी एफर्ट आपके पेशेंट की खुद है। एसबीटी इज कंटिन्यूड फॉर 15 to 30 minutes and can go maximum for 2 hours. So 30 minutes से 2 hours तक आप उसको ट्रायल दे सकते हैं। मीनवाइल आपका पेशेंट कभी भी डिसाइड करता है, डायफिरोसिस होती है, वर्कर ब्रीदिंग बढ़ता है, टेकिकार्डिया होता है, टेकिपनिया होता है, कॉन्शियस लेवल इंपेयर होता है, आप इसको स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल को उसी वक्त खत्म कर दोगे, ये बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पेशेंट जो है वो ठीक रहता है स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल के ऊपर, तो आप उसको एक्सट्यूबेशन प्लान करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कुछ पैरामीटर्स हैं हम आगे चल के डिस्कस करूंगी, जब उससे कम सेटिंग्स हो जाएंगी आपकी, या मिनिमम वो सेटिंग्स हो जाएंगी ना आपके वेंट की, तब आपने स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जो ट्रायल है उस पर जाना है। उससे पहले आपने नहीं जाना। उससे पहले आपने जो आपका वेंटिलेटर है उसी से सेटिंग्स को वीन ऑफ करना है, कम करना है। ये रेलिवेंट है, इसलिए मैंने यहाँ ही जिक्र कर दिया है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन की जहां तक बात है, इसके ऊपर आपका मेनली जो है ये टीपीस है। दिस इज हाउ इट लुक लाइक। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये ईटीटी से अटैच होने के लिए, और पीछे जो है ये मेन ऑक्सीजन सप्लाई के साथ है। तो पीछे से आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, एक तरफ से आप ईटीटी के साथ इसको अटैच कर रहे हैं। पेशेंट की ब्रेथ सारी की सारी खुद है, उसके प्रेशर सारे के सारे खुद हैं, और आपने उसको स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल दिया है फॉर 30 मिनट्स टू 2 आवर। अगर वो उसको टॉलरेट करता है, अगर इसको ये सक्सेसफुली टॉलरेट करता है, तो आप बस खत्म कर दें, आप उसको एक्सट्यूबेट कर दें और आपकी ऑनगोइंग रेस्पिरेटरी केयर दें। लेकिन अगर कहीं पे भी, जो मैंने बताया कि क्राइटेरिया फेल हो जाता है, तो आप उसी टाइम पे स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जो ट्रायल है उसको खत्म करके उसको प्रीवियस वेंटिलेटरी सेटिंग्स पे ले जाएंगे, और फिर आप इसको बहुत ग्रेजुअली वीन ऑफ करेंगे इस पेशेंट को। ठीक है। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन की जहां तक बात है, इसके अंदर जो मेन आपका फैक्टर है वो पी सपोर्ट है। इसके अंदर आपने पी सपोर्ट को सेट करना है। कितना सेट करना है, डिपेंड ऑन द ईटीटी साइज। अगर आपका ईटीटी साइज जो है थोड़ा बड़े साइज का है, तो आप पी सपोर्ट जो है वो 8-7 तक दे सकते हैं। लेट्स से आपने 4.5 वाली ईटीटी डाली हुई है एक बच्चे को, उसका मतलब है उसका डायामीटर अच्छा है, उसकी रेजिस्टेंस कम है, तो आपको पी सपोर्ट कम देनी पड़ेगी। ईटीटी साइज ज्यादा, पी सपोर्ट कम। ईटीटी साइज छोटा, लेट्स से 3.5 है, तो आपकी पी सपोर्ट 10-15 तक जाएगी। इसके अंदर सिर्फ आपने सपोर्ट करना है उसकी ब्रीदिंग को। उसकी ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, उसके प्रेशर्स जो है वो उसको खुद जनरेट करने चाहिए, आपने थोड़ी सी उसको सपोर्ट दी है। इस और समटाइम जो है वो पीएसवी को एसआईएमवी के साथ कंबाइन किया जाता है। वो सर से हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या मेथड है, मुझे बहुत ज़्यादा उस बारे में पता नहीं है, लेकिन स्टडीज में ये मेंशन है कि पीएसवी अलॉन्ग विद पीसीएसआईएमवी इज अ वेरी गुड वीनिंग मेथड। उसके बाद आपका जो है प्रेशर कंट्रोल सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन तो है ही है। अब चूंकि हमने पीसीएसआईएमवी को ऑप्ट किया था, अब हमने क्या करना है, FiO2 जो तैयबा बात करी थी, FiO2 को ग्रेजुअली डिक्रीज करना है 5 to 10 की इंक्रीमेंट्स में। रेट को हमने कम करना है 2 to 5 की इंक्रीमेंट्स में। पिप और पीप जो है इसको भी आप साइमल्टेनियसली या थोड़ा सा गैप के साथ कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी पैरामीटर्स। एक बात आज सर से सुबह मॉर्निंग में डिस्कस हो रही थी कि ये जो आपकी वेंटिलेशन वीनिंग है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये टेलर मेड सिचुएशन है। जैसे जैसे आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं, आप इसको पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पहले रेट ही कम करना है, आपने पहले FiO2 ही कम करनी है। ठीक है, प्रेफर्ड है कि आप पहले FiO2 रेट से स्टार्ट लें, फिर प्रेशर्स पे आ जाए। अगर आपने, जैसे सर से डिस्कस हुआ था कि आप मिनिमम पे ले आए और आपके प्रेशर्स जो हैं वो हाई के हाई हैं, तो आप क्या उसको वीनिंग उसकी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर जो पैरामीटर्स हैं सारे के सारे उनको एड्रेस नहीं किया। तो बहुत चांसेस हैं कि ये वीनिंग जो है ये अनसक्सेसफुल होगी या री इंटुबेशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर वकार, नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, अभी जो आपने पैरामीटर सेट किए, अब हमने उसकी ग्रेजुअली जो है वो वीनिंग स्टार्ट की है 6 to 8 आवर्स। अच्छा, एक अहम बात भूल, मुझे ये बताइएगा कितनी देर में वीनिंग करनी है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। कितना टाइम लेना चाहिए आपको वीनिंग करने में, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में? डॉक्टर तैयबा, एनी आइडिया?
मैडम it may take almost 12 to 24 hours. इट डिपेंड्स, आपके जितने डेज ऑफ वेंटिलेशन थे, आपके डे मैकेनिकल वेंटिलेशन का 30 to 40% शुड बी वीनिंग। लेट्स से जैसे इस बच्चे को हमने 3 दिन के लिए वेंटिलेट किया है, तो कितना इसका 30% कितना हो जाएगा डॉक्टर बकार? 1 डे हो अगर 3 जाएगा। डेज के लिए 1 डे, ठीक है, 1 डे ऑलमोस्ट 1 डे, ठीक है, 0.9 1 डे, ठीक है। तो इसकी जो वीनिंग है वो आपको 24 आवर्स के अंदर ग्रेजुअली करनी है। अगर आपकी वेंटिलेशन ही शॉर्ट टर्म थी, आपका कोई फिट हुआ, उसके बाद सडन जो है अपनिया हो गया, आपने इसको इंटुबेट किया, उसके बाद फिट कंट्रोल कॉन्शियस डीगेन हो गया या पैथोलॉजी रिवर्ट हुई समहाउ, और आपके पेशेंट जो है वो उसकी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग आ गई, उसको आप जल्दी कर लें। लेकिन जिसमें आपने वेंटिलेशन पे टाइम लगा है, तो फिर आपको 30% है वो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 6 to 8 आवर्स के बाद आपने उसकी जो सेटिंग्स थी वो कम कर दी जनरली। पीप अभी जो है वो 23 है, पीप जो है वो 4 है, और उसका जो रेट था वो 40 है, और इसकी जो FIU 50 है। सारे के सारे पैरामीटर 6 to 8 आवर के में कम किया है। नेक्स्ट करिएगा डॉक्टर बकार। नेक्स्ट होगा जी, ठीक है। उसके बाद उसकी जो क्लिनिकल मॉनिटरिंग हो रही है, हार्ट इज फाइन, रेस्पिरेटरी रेट इज विद इन द नॉर्मल रेंज, और उसकी जो आर है आउटपुट है ठीक, और हेमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी है, लो डोज है, वेसोप्रेसर्स पे है, और उसकी जो ABGs आई हैं दे आर ठीक है। क्योंकि हम पहले इतना डिस्कस कर चुके हैं, तो PO2 भी ठीक, PCO2 भी ठीक है, बायोकार्ब भी, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल ABGs, डिजायर्ड आइडियल ABGs आई आपके पास, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगेन आप इसी प्रोसेस ऑफ वीनिंग को फर्दर ग्रेजुअल जो है वो कंटिन्यू रखोगे, कि अगर आपकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं आती, डिसैचुरेशन नहीं होती, आपकी हाइपोक्सिया हाइपरकार्बिया वाले एलिमेंट नहीं आते, तो आप इसी को ग्रेजुअली जो है वो वीनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे। अगेन अब जो आपकी आई है वो FIU आपने फर्दर जो है वो नेक्स्ट 6 आवर्स में वो 35 तक ले आए हैं, रेट जो है वो 28 कर दिया है, पिक ओवर पिक 20/3 हो गई है। उसकी जो नेक्स्ट कर दें डॉक्टर बकार, उसकी जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, उसके जो ABGs हैं वो भी अनरिमार्केबल है, ठीक है। तो आप अगेन इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे, और दरमियान में अगर कोई भी मिसहैप होता है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो उसको आप एज सच डील करोगे। फर्दर 6 आवर्स के बाद बैक करिएगा डॉक्टर। फर्दर 6 आवर्स के बाद जो है वो उसका रेट मिनिमम आ गया, उसकी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जो है वो आपके लिए 90% से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है। रेट आपने 10 to 15 तक कर दिया है, पिक ओवर पीक हमारी जो है वो भी निग्लिजिबल हो गई है, FIO2 निग्लिजिबल हो गई है, 21-25 तक आ गई है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स अब आपके जो है वो बिल्कुल वीनिंग पे आ गए हैं। आप इसको एक्सटुबेशन का ये पेशेंट जो है वो कैंडिडेट बन गया है। और अगली जो स्लाइड है उसके अंदर हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द गोल्ड लाइन स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्टिवेटिंग द पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर। डॉक्टर बकार नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करिएगा डॉक्टर बकार जी। ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके अंदर पहले तो हमने वीनिंग की बात की है ना, कि आपकी चीजें स्टैटिक हैं, इम्प्रूव कंडीशन आए तो आप उसको वीन कर दें। एक्सट्यूबेशन कब करनी है? When there is improvement or resolution of the disease process, when there is normal ABG with minimum PaO2 of 60 or more, FiO2 required FiO2 is 40 or less, no need for increased respiratory support in prior 24 hours, alert mental status with GCS of at least 8 or more than 8, and hemodynamics point पे आपको आप उसको रिमूव करते, अगर नहीं करता तो फिर any questions? जी मैडम, देयर इज वन क्वेश्चन। मैडम ये जो हम टेपरिंग कर रहे होते हैं, सेटिंग की, हम पिप कम कर रहे हैं, हम FiO2 कम कर रहे हैं,
इसका हार्ड एंड फास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई प्रेफर्ड कोई हमें ट्रिक बता दें कि हमने पहले किसको कम करना है, उसके बाद किसको कम करना है, कितने आवरली हमें रिड्यूस करना है। जी मेरे ख्याल से डॉक्टर समीना का डिस्कनेक्ट हो गया है। चलें, Dr. Taiba, I will try to address this question. Dr. Samina has given a detailed description of and answer up to your question. Since the ventilation is not just manipulating one parameter at one time. Basically, this is a fine tuning of ventilation. You see, when as if you are adjusting a music. In the music, there are different things like bass, like volume, like pitch, all these things. So if you fine tune all these things at the same time, then you get a beautiful and more predicted response. But if you just reduce one to lowest limit and then you touch the second and bring it to the lowest limit, then it doesn't look nice. So our first preference is to bring down the FiO2 as low as possible, not the lowest, but at least up to 40. And then PIP and rate should be smoothly lowered together, depending upon the patient's response. But these two parameters should be slowly tapered. Like if you're decreasing 5 PIP, you're getting good response, then you can reduce subsequently again rate of slightly low. And then in the next session, you can also bring down FiO2 rate and PIP all one by one gradually. So do not continue to reduce one parameter like from PIP from 24 to 16. Don't bring it without touching the other parameters. So keep titrating and keep bringing all the parameters gradually lower so that in the end of the ventilation during weaning, you should not come across a parameter that is built on the lowest side and a parameter that is on the highest side. So this is just a fine tuning of ventilation in the weaning. Hope you got answer. सर एक क्वेश्चन आया हुआ यूट्यूब पे, किसी ने पूछा हुआ है कि सर हाउ कैन वी असेस स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ऑफ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर व्हाइल वी आर यूजिंग sedatives? Sedation, during sedation, patient can still breathe because the sedation does not stop breathing. Only we stop breathing when the patient is paralyzed. So sedated patient still breathes, and we can measure that effort from expert monitoring. We can see how many ventilator breaths are being delivered and how many breaths are being taken by the patient himself or herself. But if you want to paralyze the patient, only then the patient will be uncontrolled breathing. So sedation does not stop spontaneous breathing. Remember, sedation is not to put the patient on altogether uncontrolled. If you want to, sedation is just to reduce the activity of the patient. And in meconium aspiration, we frequently require sedation because the patient is agitated, patient is active and moving, sometimes having other type of activities. So sedation is required, but sedation does not interfere with the spontaneous breathing until it is sedation is at a very high dose that depress the spontaneous breathing. Otherwise, and basically sedation is not used to stop spontaneous effort. If you want to stop spontaneous effort, you have to give paralysis, that is atracurium and things like that. जी और किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन? डॉक्टर समीना है हमारे साथ अभी या निकल गई? जी जी है। नहीं डॉक्टर समीना नहीं वो डॉक्टर सायरा का यूज कर रही है, डॉक्टर सायरा का यूज करेंगे, सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे प्रेजेंटेशन खत्म, सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। जी सर। Dr. Samina, really impressive, very impressive presentation. And this
presentation is beyond the expectations, and I really appreciate the way you have presented. And this is a role model presentation. And I think for the next sessions, we will be we'll having the similar sessions with different diseases. So the people will come to know how to ventilate in different conditions. So I think this type of discussion and this type of these things, I think they're not discussed even in the workshops, because in the they just discuss the principles of ventilation. But specifically according to for every disease, so this type of discussion is not done anywhere. So if you go to the literature, even you will not find so many studies comparing the ventilation modes, comparing the different studies. They will say, follow your institutional policies. So how the institutional policies are made? They are made by discussion. We are discussing here one disease. We can formulate our own institutional policy. Like you talked about the spontaneous breathing trial. Spontaneous breathing trial is a very good form of weaning strategy, because you can quickly wean off. You need not to have a longer duration of weaning period of 24 hours. If patient tolerate a spontaneous breathing trial, this is the quickest way of weaning the patient off from the ventilation. Similarly, pressure support and SIMV, they are slow modes, and they are also pressure support is totally spontaneous mode. We are just giving pressure. So these things, I think if we can formulate our own policy for every meconium aspiration, we will follow this sequence. We'll start with this ventilation. These are our goals. And then we will ventilate, and gradually we will switch to this mode, PSD or spontaneous, or when in the spontaneous breathing trial as well. So T-pace resuscitator is not available with us. And even if it is not available, we can use CPAP. We can use CPAP for this. CPAP machine, that can be used as. बिल्कुल सर, thank you so much sir, बहुत शुक्रिया, thank you. Really very happy. Thank you. What will be next discussion? सर आप सजेस्ट करें, हम इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे. I think RDS has been discussed, or do you want to discuss RDS again? Sir, we should ask from the participants. So participants से बताएं. We need to discuss it in the detail again. So last time we were unable to cover the whole details, so I think we should discuss it again. ठीक. Okay. So next time we'll discuss RDS. Definitely. ठीक है सर, बिल्कुल सही, इंशाल्लाह. And I expect all the participants to remember what we have discussed in this, because we will be comparing. Basically, now we will not going into much details of all these things. We will comparing our ventilatory strategy of meconium aspiration with RDS. Now there will be comparative discussions that we did with. This was the strategy in MAS, and now this is strategy in RDS. So I think these two representative diseases, we will go to the ventilation in cardiac patients subsequently. Inshallah. So it was an excellent discussion today. This was excellent discussion, and the whole credit goes to Dr. Samina. She has involved. And guidance. Thank you so much. I have some reservation for the participants who are just attending. They're sitting silent. They are losing this opportunity, and those who are not participating in this, they will miss it later on, because this type of activities, they are not conducted routinely. So I suggest all the remaining PGs who have not yet participated, and those who are participating, they must actively participate. So I think we can now take the help of Dr. Taiba for the next preparation of presentation. Yes, sir. We also congratulate her for getting engaged, and due to this, we want her to give a presentation now, more enthusiastic presentation. दो कुर्बानियां. Okay, sir.
Sir, definitely I'm here. Like, Will sir, be, it inshallah. will be a discussion. We'll just make a presentation of on the same format that Dr. Samina has presented. Okay. That's Okay. it. Okay, चले that's all. चले सर क्लोज करें जी डॉक्टर बकार जी सर क्लोज करें सर इसमें मैं भी जूम पे ना 3 महाज पे लड़ रहा होता हूँ एक मैं लेक्चर भी ले रहा होता हूँ दूसरा जूम भी कंट्रोल कर रहा होता हूँ तीसरा व्हाट्सएप भी देख रहा होता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर नहीं आज तो मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि आज हमें डिस्कनेक्ट करने को दिल नहीं कर रहा चले आप सबका बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज सर चलाइए।